Moving our focus to the national capital, details of the Delhi Chief Minister attackers travel to Delhi, in fact, now comes to light. Attacker traveled to Indore after leaving Rajkot. On 18th of August, the accused reached Ujjain, where he visited Mahakal, Kal Bhairav and Mahalakshmi temples. On 18th of August at 6:30 p.m., accused Rajesh Bhai boarded Indore to New Delhi express train to come to the national capital. The accused had not bought a train ticket. On 19th of August, 6:30 a.m. that is, Rajesh Bhai reached New Delhi railway station. The accused, remember, is from Karol Bagh, reached Hanuman temple and recited Chalisa there. So these are some of the details with regards to how his travel plan looked like as he was making his way from Rajkot to Delhi. There were several stops that he had made, first to Indore and post that he in fact ended up coming to Delhi. Remember, his mother as well, when first reached out to right after this incident had been flagged, she had said that he was upset with the stray dog order that had come in the national capital, and post that he had left for Delhi on Monday itself. And she had in fact reportedly said that he'd reached Delhi on Monday itself. But these are new details that we're bringing to you. Himanshu Mishra joins us on the broadcast to bring us more details. Himanshu, very good morning to you. ट्रैवल प्लान्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी अभी सामने आ रही है. आप थोड़ा और हमें बताइए कि कैसे वो राजकोट से दिल्ली आया था. देखिए, पूरा जो उसका जब पुलिस ने उससे पूछताछ की और जब जो अब तक वेरीफाई किया गया है, उससे पुलिस को ये पता लगा कि ये राजकोट से सबसे पहले उज्जैन पहुंचा था और उज्जैन में इसने तमाम मंदिर, जिसमें महाकाल के अलावा और भी जो सारे मंदिर, उनके दर्शन किया और फिर वहां से वो बिना टिकट ट्रेन से वो राजधानी दिल्ली पहुंचता. और दिल्ली यहाँ पहुँचने के बाद उसने घर की रेकी की, जो पर्सनल उनका जो शालीमार बाग वाला घर है वहाँ पर वो गया. उसके पहले वो पहुँचा था हनुमान मंदिर, वहाँ पर उसने पूजा पाठ की थी और वहीं से उसने जानकारी ली थी कि कहाँ पर रेखा गुप्ता का घर है और वहाँ पर वो गया. वहाँ पहुँचने के बाद उसने रेकी की थी और रेकी करने के बाद जब वो मिलने की कोशिश किया था तो वहीं से उसको पर्ची मिली थी कि बुधवार की सुबह वो आ सकता है, जो सरकारी आवास है उनका सिविल लाइन में, वहाँ पर आ सकता है और वहाँ पर जन सुनवाई के दौरान वो मिल सकता है. अब इसके बाद वो वहाँ पर पहुँचा और उसने इस पूरे जो मारपीट की घटना को उसने अंजाम दिया. अब सवाल ये उठता है कि इस दौरान क्या उसकी किसी से मुलाकात हुई, क्योंकि ये उसने नहीं बताया है. क्या उसने किसी से बातचीत की, जो उसने कॉल रिकॉर्ड से डिलीट किया? इसके लिए पुलिस को अभी रिपोर्ट का इंतज़ार है ताकि उसका पूरा कॉल डिटेल, चाहे वो व्हाट्सएप पे अगर उसने किसी से बात की हो, कोई मैसेज शेयर किया हो, अपनी लोकेशन शेयर की हो, अगर ऐसा कुछ होगा तो पुलिस के पास 1-2 दिन में वो पूरी रिपोर्ट जो है वो पहुंच जाएगी. इसीलिए पुलिस ने 5 दिन की रिमांड ली है यहाँ पर श्रेया. जब पुलिस ने आधी रात में एमएम के सामने पेश किया तो कई सारी बातें पुलिस ने रखी थी. उसमें सबसे पहले तो इसका पूरा रूट प्लान और दूसरी चीज़ कि क्या इसने अपने प्लान के बारे में किसी को बताया था या किसी ने क्या इसकी मदद की थी, कॉन्स्पिरेसी थियरी है या ये सच में जैसा कि दावा किया जा रहा अलग अलग इसके घर वाले या इसकी तरफ से कि पशु प्रेमी है, कभी बंदर के लिए, कभी कुत्ते के लिए, कभी इस तरीके से ये जो है अनशन और धरना देता रहता. और यहाँ जी हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि हमारे पास और ज़्यादा अभी और भी न्यूज़ आ रही है इस पूरे मामले को लेकर. Viewers, there is more news that's coming to the forefront at this given point. What the accused is now telling during the interrogation. Remember, he's already been nabbed by the Delhi police and interrogation has been underway ever since. The accused told during the interrogation that he has also fasted in Gujarat for a matter related to the welfare of animals. Accused went to Ayodhya in May where he fasted for the betterment of monkeys. The accused told during the interrogation that he had seen in his dream that a dog was sitting on the shivling, due to which the accused felt that Shivji has chosen him to raise the voice of dogs. The accused told that a few days ago he had seen a video in which there was a talk of building a shelter home for dogs in Delhi. Now the police is baffled by similar statements given by the accused and is also looking for the real motive here. हिमांशु, अभी ये जानकारी जो आई है और आप भी बता रहे हैं कि ये जो वेलफेयर ऑफ एनिमल है ये काफ़ी ज़्यादा उनका एक ये मुद्दा था उनके ज़िंदगी में, जिसके लिए वो काफ़ी टाइम पूजा करते थे और इसके लिए कहा भी गया है कि वो दिल्ली भी आए थे.
अभी इन सब चीज़ों को लेके पुलिस देख रही है कि स्टेटमेंट्स काफ़ी मिलजुल रहे हैं, पर अभी भी रियल मोटिव सामने नहीं आई है। क्या रियल मोटिव इससे भी कुछ ज़्यादा ग्रूसम हो सकती है, ज़्यादा क्रूशल हो सकती है, जो अभी तक आई नहीं है सामने? बिल्कुल हो सकती है। देखिए अभी तो जांच जो है वो शुरुआती दौर में है। 5 एफआईआर भी दर्ज हैं इसके खिलाफ, कुछ में बरी हो गया, ये सारी बातें हैं। लेकिन क्या है कि इससे नेचर का कहीं ना कहीं क्लैरिटी आती है कि किस तरीके का आपका व्यवहार पब्लिक में रहता है। एक मुख्यमंत्री के घर आप इतनी दूर से आते हैं और जिस तरीके से आप अटैक करते हैं, आपको मौका मिलता है मुख्यमंत्री तक पहुंच के अपनी बात करने का, वो भी एक बार में। तो ऐसे परिस्थिति में आप जाते हैं और जाकर के अटैक कर देते हैं और अटैक करते हैं और उसके बाद बातें हैं कि मेरी बात को अनसुनी कर दी। आप राजकोट से आते हैं, जो चीज़ें लीगल मैटर है उसको लेकर के अगर आप जाते हैं, अगर ये बात हम सही भी माने तो कहीं ना कहीं पुलिस को इसलिए इस पूरी बात पर यकीन नहीं है। इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, काफ़ी कुछ फ़ोन से, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या जब इसने प्लान बनाया था दिल्ली आने का, दिल्ली आने के प्लान के दौरान, दिल्ली आने के दौरान इसने किसी से बातचीत की, इसकी किसी ने मदद की। सबसे पहले पुलिस ये रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है कि जब वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचा था और वो जब अंदर गया तो तमाम जो सीसीटीवी फुटेज हैं उन फुटेज को पुलिस फ्रेम बाय फ्रेम, एक एक फ्रेम को चेक कर रही है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख रही है। क्योंकि पुलिस ने देखिए अटेम्प्ट टू मर्डर 109 बीएनएस 109 लगाया उसके खिलाफ। तो पुलिस कहीं ना कहीं, पुलिस के पास कुछ ऐसे तथ्य जरूर आए हैं जिनके आधार पर ये पुलिस ने धारा लगाई है कि किस तरीके से जो अटैक था वो अटैक जान लेने की नीयत से किया गया था। जी, अभी काफ़ी सारे ऐसी बातें और ऐसी जानकारियाँ खुलासे में आ रही है। हिमांशु, हमारे साथ बने रहिएगा। वी विल गेट यू मोर अपडेट्स एज हिमांशु कीप्स इन फैक्ट अपडेटिंग अस विथ रिगार्ड्स टू व्हाट द इन्वेस्टिगेशन इज रिवीलिंग अबाउट दिस वेरी अटैकर, एज डिटेल्स हैव बीन pouring in with regards to his real motive behind attacking the Chief Minister of Delhi.